Hello, yet again. Today, I come up with this video to explain to you all the current affairs that we often get to see that bothers us, which is regarding the banking system of India. We often get to see there is a various terms that we encounter, for example, CRR, SLR, repo rate, reverse repo rate, etc., and so on and so forth. So I come here to simplify those terms for you, and let us try to understand that what is the impact of this kind of fluctuations and this kind of terms that we often come across in our newspapers. The first term that determines the entire banking system in India is the CRR, right? As you can see in the board, what is CRR? CRR is a minimum amount of money. It is a minimum amount of deposit that the commercial banks have to hold as a reserve. That means let's say the commercial bank, let's say any bank, let's say SBI, we can take the example of SBI. It gets a deposit of, let's say, 1,000 crores, right? Let's say it gets a deposit of 1,000 crores. Now this CRR, this norms that has been laid by the central commercial bank or the banking regulator of India, that is the RBI says that you cannot use the entire 1,000 crores for your business. You have to save certain amount of it with us. That is, the SBI has to deposit a percentage of this money. एक परसेंटेज एसबीआई को डिपॉजिट कर देना पड़ेगा. किसके पास? आरबीआई के पास. You have to deposit this amount of money to the RBI as a security deposit, right? And currently that percentage stands to be 4.5% right now. Okay, the CRR percentage right now stands out to be 4.5%. That means out of 1,000 crores, let's say SBI has total 1,000 crores. Some individual comes to SBI and he deposits 1,000 crores. तो उस 1,000 crore में 4.5% कहाँ जाएगा? Directly SBI RBI के पास जाएगा. That means around 45 crores of rupees, right? 45 crores of rupees will go to the RBI out of these 1,000 crores. What is left with the bank now? You subtract 45 crores from this, and that is the substantial amount left with SBI. Next, let us go. The percentage of cash required to be kept in reserves, a bank's total deposits, is called as CRR. This is the definition that you can write in the mains. Okay, so roughly speaking, it is the amount that has to be kept with RBI. Next important term that I come across to discuss is the SLR. Now SLR, often at times you get to hear in the news that it is a statutory liquidity ratio. What is a statutory liquidity ratio? It is another type of a ratio or amount. Let's go back to the same example of 1,000 crores. I told you that 4.5% of that has to go to the RBI. That means 45 crores rupees, 45 crore has to go to the RBI out of these 1,000 crores. RBI says out of the remaining 955 crores, ठीक है, 45 करोड़ अगर आरबीआई के पास चला गया, एसबीआई के पास कितना बचा? 955 करोड़. तो 955 करोड़ में से भी सारा पैसा आप अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं कर सकते. You cannot use the entire amount of money for your business. How much can you use? Actually, that depends on the SLR ratio. Currently, it stands out to be 18%. Okay, 18%. So SBI has to maintain this 18% again with themselves. That is 18% of 1,000 crores is 180 crore. Okay, तो पहले 955 crores था and ये 180 crore SBI के पास ही रहेगा. However, मैंने ये बताया था जो 45 crore था वो RBI के पास चली जाएगी SBI से, but ये जो SLR है that is 180 crore that shall remain with SBI themselves. ये RBI के पास नहीं रहेगा. ये बस एक लिक्विडिटी मतलब होता है कि यूजेस ऑफ मनी के लिए कभी अगर खराब इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है तो SBI के पास ही रहेगा. दे कैन एनक्रोच दिस मनी फॉर देयर इमरजेंसी यूज. ये RBI के पास नहीं जाएगा, SBI के पास रहेगा. डिफरेंस बिटवीन CRR एंड SLR इज CRR goes to RBI, SLR stays with SBI. तो टोटल अब कितना बचा? अगर आप मैथमेटिक्स थोड़ा सा कर लेंगे, right? If you see the maths here, that 45 crores goes to the RBI, ठीक है? तो 1,000 minus 45 comes out to be 955 crores, and उसमें से भी 180 crores we have to subtract. So 955 से अगर 180 crores आप subtract कर देंगे तो you will get a remaining of 775 crores. ठीक है? तो कितना पैसा रहता है अभी RBI के पास?
सॉरी SBI के पास 955, दैट इज 1000। देखिए मैं पूरा मैथमेटिक्स आपको दिखा देता हूँ एक बार, जस्ट अ सेकंड। सो 1000 करोड़ था मेरे पास सबसे पहले SBI के पास, उसमें से 45 करोड़ माइनस हो गया। अब उसमें से भी कितना और माइनस हो गया, 180 करोड़। ठीक है, तो टोटल अगर आप देखेंगे तो अराउंड 775 करोड़ इज व्हाट इज लेफ्ट विद द SBI। अब मैं बताऊंगा इस 775 करोड़ का क्या होता है, बट लेट अस सी द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे द कमर्शियल बैंक्स कैन मेंटेन देयर SLR इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, ठीक है, सोने के हिसाब से भी मेंटेन कर सकते हो, लिक्विड कैश दैट इज द नोट्स, ठीक है, और एनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, सिक्योरिटीज भी आप मेंटेन कर सकते हो। व्हाट इज सिक्योरिटी? सिक्योरिटी ये होता है कि गवर्नमेंट का एक बॉन्ड के तरीके से आप मान के चल सकते हो, जिसमें गवर्नमेंट से आपको रिटन अंडरस्टैंडिंग मिलता है, दैट इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। So unlike the CRR जो मैंने आपको पॉइंट बताया, SLR is maintained in the own vault of the commercial bank, ठीक है। CRR आपको समझ में आया, SLR आपको समझ में आया। अब होता क्या है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस। लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ बैंक, ठीक है, यहाँ पे अंबानी जी आते हैं हमारे, लेट अस से अंबानी तो कम्स टू SBI जो भी बैंक है, एंड ही वांट्स टू डिपॉजिट अ अमाउंट ऑफ 1000 करोड़, ठीक है, 1000 करोड़ तो छोटा अमाउंट है उनके लिए, और ये नया बैंक था कोई, ठीक है, ये एकदम शुरू हुआ था, फर्स्ट कस्टमर अरे अंबानी है उनका। तो बैंक तो चाहे कि ज्यादा से ज्यादा लोन दे दे उस अमाउंट का, ठीक है, क्यों? क्योंकि लोन पे क्या मिलता है बैंक को? इंटरेस्ट। द बैंक व्हेन इट गिव्स लोन्स इट अर्न्स इंटरेस्ट, 10%, 5%, 7%, व्हाटएवर इज द रेट। होम लोन, कार लोन, अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है। तो बैंक तो चाहेगी कि 1000 करोड़ का पूरा किसी दूसरे गरीब को हम लोन दे दे, एंड उस पे हम इंटरेस्ट कमा के इस 1000 करोड़ को पकड़ लीजिए 1500 करोड़ कर लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे तुरंत RBI आएगा कि नहीं, 1000 करोड़ तुमको मिला है तो CRR मेंटेन करने के लिए आपको 45 करोड़ मेरे को देना है, एंड उसमें से SLR मेंटेन करने के लिए आपको 180 करोड़ अपने पास रखना है। बाकी बचा हुआ जो 775 करोड़ है, ठीक है, वट एवर इज रिमेनिंग, वो आप यूज कर सकते हो फॉर योर लैंडिंग एक्टिविटीज। तो डेफिनेटली आप उसमें से लोन दे सकते हो। उसमें भी कुछ और कंडीशनैलिटीज होते हैं, जैसे कि आप यू हैव टू सी अ गुड लैंडर, यू हैव टू सी बैड लोन्स का कोई अगर NPAs होने का कोई संभावना है, ये सारी चीजें भी हम लोग कवर करेंगे। बट टुडे लेट अस सी कि एक्चुअली में बैंक्स के पास कितना लैंडिंग पावर होता है, राइट। तो दिस 775 करोड़ इज एक्चुअली व्हाट इज लेफ्ट विद द बैंक टू डू द डेली बिजनेसेस, ठीक है। अगर आप 2021 की दिसंबर की डेटा देखेंगे, ठीक है, टुडे द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया स्टैंड्स आउट टू समवेयर अराउंड 162 ट्रिलियन रुपीस, ठीक है। तो 162, ये तो मैंने 1000 करोड़ का छोटा सा एग्जांपल लिया था, तो 162 से भी ज्यादा थोड़ा ट्रिलियन रुपीस until December 2021 was the what total deposits of Indian banks stands out to be। तो आप अपने हिसाब से CRR और SLR करके कैलकुलेट करके मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में कितना बिजनेस टोटल बैंक्स ऑफ इंडिया कर सकती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सिंपल टॉपिक CRR SLR। अगले वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि इसका रिलेशन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट या इन्फ्लेशन के साथ कैसा एक रिश्ता होता है। Hope you have benefited from it. Thank you for your time and presence. I'll see you there. Bye-bye. Borthakur IAS Academy. प्रस्तुति और अध्ययনৰ নিৰ্ভৰযোগ্য ঠিকনা। Borthakur IAS Academy।